મિત્રો, આજે એમએસડીના ગુરુવારી મિટિંગને બધાનું સ્વાગત. પહેલાં આપણે મિટિંગ શરૂ કરતાં પહેલાં આજે સ્વરૂપબેનનું જે આપણે ચર્ચા ગઈ વખતે રાખેલા હતા એ તો ચાલે જ એવું બધું બધા વિચારતા હોય, પણ તો એ તો એને તો કઈ જગ્યાએ તો એને તો છેદ પાડવું પડે, પૂર્ણછેદ નહીં, છેદ તો પાડવું પડે. એનું પૂર્ણછેદ તો ક્યારે હોય નહીં. એટલે એને બીજું ભાગ આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. પણ એને પહેલાં આપણે સાથે એક બહેન હતા, બહુ લડાકુ બહેન, બહુ હિંમતવાળી બહેન, એક ઇન્કલાબી ટાઈપનું બહેન, દમયંતીબેન પારેખ. આપણે બધા જાણતા હશો. આપણે અહીંયા આવતા હતા અને જ્યારે કોઈ હિમાનચંદ પ્રોગ્રામ હોય, ધરણા હોય, એમાં અહીંયા આવીને જોડાય, ગીતો પણ ગાય. બહુ જૂના કાર્યકર, બહુ જૂના કાર્યકર. અને એ થોડા દિવસ પહેલાં આપણે વચ્ચે રહ્યા નહીં. તો હું થોડે મીનાબેનને કહું કે એમને બાબતમાં બે શબ્દ કહે, પછી આપણે થોડું સાયલેન્ટ 2 મિનિટ એને પણ મૌન પાડીશું. સૌ વડીલો અને મિત્રો, કદાચ આપણા ફોરમ મૂવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના સૌથી વડીલ સભ્ય દમયંતીબેન, જ્યારે પૂછીએ ત્યારે ઉંમર હસીને કહે કે હું તો આટલી ઉંમર થઈ પણ જુઓ કેટલી યુવાન છું. અને સાચે એ ઉંમરે પણ એ અહીંયા બસમાં આવે જાય, કદી કોઈ ફરિયાદ નહીં. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે આ જુસ્સો આ પેઢીમાં કેવી રીતે આવ્યો હશે. અને સૌથી વિશેષતા કઈ હતી એમની, એમણે એમના પાછળ મધરનું નામ લખતા હતા, દમયંતીબેન શાંતા પારેખ. એટલે જુઓ, આપણે સંજય લીલા ભણસાલીને બધાની વાત કરીએ છીએ ને હવે તો ઘણી એ પ્રચલિત બન્યું છે માનું નામ પાછળ લખવાનું. પણ દમયંતીબેનને મને એવું લાગે છે કે આપણે સ્વરૂપબેન આપણા પહેલાંની જે પેઢી કદાચ એમાં એમણે શરૂઆત કરી હતી કે પોતાની માતાનું નામ લખવાનું. અને એનું કેટલું એમને પોતાને અભિમાન હશે કે બહુ સાહજિક રીતે એ પોતાનું નામ દમયંતી શાંતા પારેખ લખતા. મને એનું જ આશ્ચર્ય થતું હતું. પછી તો એટલી શરૂઆત એમની જે કામગીરી હતી એમાં તો હું કોઈ એમની સાથે હતી નહીં. 2 ઘટનાઓ યાદ આવે છે કે જ્યારે લઠ્ઠાકાંડ થયો ત્યારે હું અને ઈલાબેન અને દમયંતીબેન લઠ્ઠાકાંડનો ભોગ બનેલા બધા જ લોકોને ઘરે જઈને વિગતો ભેગી કરવાની એક ચેલેન્જ, કારણ કે અમદાવાદ વિમેન્સ એક્શન ગ્રુપે ગુજરાતની વડી અદાલતમાં એની PIL કરવાનું વિચાર્યું હતું. એટલે અમે બધાને ઘરે જઈને વિગતો મેળવતા હતા. એમાં દમયંતીબેન અમારી સાથે છે. કોડવથી લઈને વસ્ત્રાલ સુધી અમે સાથે ગયા હોઈશું. અને રિક્ષા ના મળે, આ ના થાય, તે ના થાય, કદી કોઈ વાત નહીં, ચાલો ને જઈએ છીએ, એમાં શું વાંધો છે એમ. હું સૌથી નાની સભ્ય, 2 વડીલો, અને એમાં એ શીખવા મળ્યું. અને પછી રેલી જે કાઢી લઠ્ઠાકાંડની ઘટનાના વિરોધમાં ત્યાં કામનાથ મહાદેવથી અને કંટોડિયાવાસના એ હોલમાં જે જાહેર સભા થઈ, એ કદાચ અમદાવાદના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એવી રીતે હશે કે જ્યાં દારૂ મળે અથવા દારૂ ગાળવાનું કામ થતું એ જગ્યાએ સભા કરવી અને જે વાત છે મક્કમતાથી હિંમતપૂર્વક કરવી, એ દમયંતીબેનમાંથી શીખવા જેવી વાત હતી. એ લોકો વચ્ચે જ રહ્યા. લક્ષ્મી મિલની કોલોની એની વચ્ચે એ પુનરુત્થાનનું કામ અને લોકોને જાગૃત કરવાનું સામાજિક રીતે અને રાજકીય રીતે, એ બહુ અગત્યની બાબત હતી. સામાજિક રીતે જાગૃતિ તો આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં નવી વાત નથી, ઘણી જૂની પરંપરા છે આપણી પાસે. પણ રાજકીય રીતે પણ જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ અને રથભાઈએ કોઈ આમ ઇન્કલાબી ભાવના લોકોમાં જાગે અને એક વિશ્વાસ કે એક દિવસ ચોક્કસ એવો આવશે કે લોકો ઇન્કલાબી ભાવનાથી તરબતર થઈને આ વ્યવસ્થાને બદલશે. એટલે દમયંતીબેનને મારો લાંબો પરિચય નહોતો, હું કોઈ એમની સાથે સક્રિય રહેવાનો મોકો પણ નહોતો મળ્યો. અમારી વચ્ચે ઉંમરનો પણ ઘણો તફાવત હતો અને હું તો બહુ જ મોડેથી એક કાર્યકર તરીકે આવી. પણ દમયંતીબેનની જે યાદ છે હંમેશા જુસ્સાભેર હોય, કદી થાકની, એટલે કોઈ ફરિયાદ જ ના હોય એમને, કોઈ બાબત વિશે ફરિયાદ નહીં. એમના ઘરે જઈએ ત્યારે પણ હંમેશા આવકાર હોય. એ કાયમ આગ્રહ કરતા રહે, બોલવા આવો, બધાને વચ્ચે ચર્ચા કરવા આવો.
ઘણીવાર જઈ શકાતું, ઘણીવાર નહોતું જઈ શકાતું. એવા દમયંતીબેનની વિદાય આપણે બધા માટે મોટી ખોટ રહેશે, કારણ કે આવા મહિલા કાર્યકર હવે તો ખબર નથી કે એ પેઢી આપણી, એટલે અમે કોઈ એ વ્યક્તિને એવી રીતે પ્રેરિત કરી શકું કેમ, પણ દમયંતીબેન એ રીતે આપણી એમની યાદ આપણી વચ્ચે રહેશે. અને હું આપણા સૌ વતી મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી વતી એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પું છું. અને આપણે સૌ 2 મિનિટનું ઊભા થઈને મૌન રાખીશું. અસ્તુ. છે ને અઘરું પડે ને નવી પેઢી. મિત્રો, આપણે तो स्वरूपबेन आज द्वितीय भाग की चर्चा आपने करवाना. मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा क्योंकि काफ़ी लोग जो लास्ट टाइम का चर्चा हुआ था उन्होंने सुना था, हिंदी में भी सुना था, उन्होंने भी रेस्पॉन्स किया कि बहुत अच्छी चर्चा है. तो मैं इस चर्चा से पहले कुछ थोड़ी से 1-2 मिनट और कुछ बात करना चाहूँगा. अभी परिस्थिति का जो है, माहौल जो है, इस माहौल के बीच में हम बात कर रहे हैं. तो एक बुलडोजर राज का जो चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका तो टीका टिप्पणी भी किया. उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को नोटिस भेजा और जिस तरह से घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर राज और बुलडोजर का जो पैलेस्टाइन्स, इजराइल्स और बाकी जगह बुलडोजर की जो प्रचलन है, तो ये बुलडोजर यहाँ भी आ गया अभी. और काफ़ी स्ट्रिक्चर आज सुप्रीम कोर्ट ने कम बात में काफ़ी बात है कही इसमें. तो एक बाद में मंगलवार को उसका फिर से हियरिंग है, फिर से चुकादा आएगा. और एक दूसरी एक बात है कि अभी अचानक एक आर्मी का एम्प्लॉयमेंट को लेकर अभी जो अग्निपथ, अग्निवीर ऐसा सब नाम दिया जा रहा है. अग्निपथ का फिल्म का नाम है, एक अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग किया था अग्निपथ. इसके नाम पे काफ़ी किताबें का, नॉवेल्स का नाम भी है. तो बड़ा आकर्षक है ये नाम. तो उसको लेकर काफ़ी रोष अभी बिहार में, यूपी में, हरियाणा में दिख रहा है. 17 साल से 21 साल के अंदर में उनको जॉब दिया जाएगा. बाद में 4 साल के बाद वो छुट्टा हो जाएंगे और कुछ सिलेक्टेड पर्सन से लोग को आर्मी में लिया जाएगा. पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा, कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगा. उसको लेकर 2 साल, 2-2.5 साल जो कोविड चला, इसको लेकर काफ़ी जो ये एम्प्लॉयमेंट बंद था, अभी अचानक हुआ. तो इसके लोग जो राह देख रहे थे कि कोविड ख़त्म हो रहा है तो परीक्षा होगा, आदमी भर्ती होंगे. लेकिन सारे पेपर में एडिटोरियल पेज, एडवर्टाइजमेंट्स, नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म, डिफेंस का मॉडर्नाइजेशंस, इस बातों को लेकर काफ़ी लिखा लिखी हुआ. लेकिन अभी रोष अभी सामने अभी आ गया. और एक भी बात है कि आपको जानते हैं प्रोफेट मोहम्मद को लेकर जो घटनाएं अभी चल रही है, और इसको लेकर भी काफ़ी बातें अभी भी तक भी चल रही है. चालू है, बात तो चालू है. वेरी सरप्राइजिंग कि जो कतार जो देश है, कतार है ना, कतार का जो देश है, वहाँ जो लोगों ने थोड़ा भी वहाँ कुछ दिखाव किया, तो कतार का सरकार ने कहा जो लोग दिखाव करेंगे उनको यहाँ ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और वो यहाँ कतार में नहीं आ पाएंगे. तो ये सब बातें काफ़ी डेवलपमेंट्स के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं
क्योंकि सारे बातों में एक प्रकार का एक कम्युनलिज्म चल रहा है, कम्युनलाइजेशंस की बात चल रही है और ये बड़ी अजीब ढंग से चल रही है। और इस बात हम कर रहे हैं कि जिसके इसमें कम्युनल हार्मोनी फ्रेटर्निटी रहे, लोग इसको याद करें। जो पुराने पीढ़ी के जो लोग हैं वो तो समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यंगस्टर्स को तो कुछ पता ही नहीं, सेंस ऑफ हिस्ट्री का भी पता ही नहीं है। इसलिए सेंस ऑफ हिस्ट्री जो जैसे स्वरूप में जैसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, कमिटेड लोग हैं, सब चीज़ों में माने एक्टिविस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, साहित्य में रस रखते हैं, किताबी लिखते हैं, तो ये काफ़ी यंगस्टर्स के साथ खास काफ़ी उनका ये जो उनका जो नाता जो है यंगस्टर के साथ ही है। तो ये सब में एक सेंस ऑफ हिस्ट्री तो आना चाहिए जिसमें हम डिसलिंक्ड हम हो गए हैं। तो इसको एक पूरे से एक लिंक देने के लिए हमारा इतना ट्रेडिशंस था, मिलीजुली ट्रेडिशंस था, हम लोग मिलजुल कर रहते थे और आदान प्रदान था। इस प्रकार की जो बात को उन्होंने लास्ट टाइम बहुत बढ़िया ढंग से हमारे सामने पेश किया था। तो आज तो फिर से इसी बात को कंटिन्यूएशन आज करेंगे। स्वरूप बहन, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जो लास्ट टाइम की जो बात है वहीं से शुरुआत करें। सबको नमस्कार और धन्यवाद। एमएसडी को, सारे एमएसडी के मित्रों को, बुजुर्गों को। मुझे लगता है कि पिछली बार महाजन संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे थे, जिस संस्कृति ने एक तरह से नैतिक और धार्मिक आधार के ऊपर समन्वय को बरकरार करने की शुरुआत की थी। उसी समय में माने 19वीं सेंचुरी जिसे कहते हैं, उसी समय में अंग्रेज़ी एजुकेशन का जो प्रभाव हुआ, माने अंग्रेज़ी शासन से आई हुई जो पाश्चात्य एजुकेशन, जिसको हम आज के ज़माने में जिसके बारे में बहुत ही उसकी आलोचना की जाती है, लेकिन पाश्चात्य एजुकेशन के आने से वैज्ञानिक और मुझे लगता है कि टेक्निकल यहाँ जो शिक्षा शुरू हुई उसको भी हमें सलाम करना चाहिए। और पिछली बार मैंने छोटी सी एक हिंट दी थी कि कॉमन प्लेसेस एंड कॉमन एजुकेशन, माने हर एक के लिए शिक्षा और हर एक के लिए साथ में मिलने बैठने की जगह। क्योंकि आज जो थोड़ी देर के बाद हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी जो लोगों की, माने शहर तो बनते हैं, इमारतों से बनते हैं, रास्तों से बनते हैं, और अपना इतिहास वो कभी खून के जरिए भी लिखते चले जाते हैं। लेकिन जिस इतिहास को पसीने ने, इंसानों की मजदूरी ने, इंसानों के पसीने ने लिखा है, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। पिछली बार भी थोड़ी बात करी थी। तो आगे चल के मुझे लगता है कि 19वीं सेंचुरी में जब यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स हुई तो आसपास पेरिफेरियल कुछ छोटे मोटे सिटीज़ में भी हुई थी, जैसे कलोल में हुई थी, जैसे सिद्धपुर में हुई थी, और उधर भावनगर तक टेक्सटाइल मिल्स का 19वीं सेंचुरी के अंत में काफ़ी मुझे लगता है कि प्रभाव हुआ था और चालू हुए थे। तो जहाँ जहाँ मिल आते हैं वहाँ वहाँ मज़दूर आते हैं, मज़दूर आते हैं, गाँव को तोड़ के शहर बनते हैं। गांव क्यों टूटना शुरू हुए थे कि वहाँ पे जो 2-3 चीज़ें थी, जो बुनकर वगैरह जो थे, जिनकी रोज़ी रोटी अपने हथकरघे, अपने जो हस्तकलाओं के ऊपर थी, वो सब टूटने लगी क्योंकि वहाँ पे यंत्र आए, मशीनें आई, बहुत बड़े पैमाने पे कपड़ा बुना जाने लगा। और यहाँ पर जो एक कमी थी कि एक इंसान एक कपड़ा जितने समय पे बुन सकता था, एक इंसान या उसका फैमिली भी उससे कई ज़्यादा गुना स्पीड से और बड़ी तादाद में टेक्सटाइल मिल्स ने करना शुरू किया। टेक्सटाइल मिल्स के चलते कोयला का, लोहे का, वो सारे फैक्ट्रीज, कारखाना सब
शहरों में होने लगे और ये छोटे छोटे शहरों में भी होने लगे। तो अपनी जो पुरखों वाली रोजी रोटी थी वो भी टूटने लगी थी हाथ की। साथ साथ मुझे लगता है कि तब भी ऐसा तो शुरू हुआ होगा कि ज़मीनें गई होगी, जाने की शुरुआत हुई होगी, और जो आम के बगीचे थे, गन्ने के बगीचे थे, खेत थे, वो सब जाने लगे होंगे। और वहाँ की जो कमाई थी वो अलग तरीके से होती थी, अलग मजदूरी से होती थी। और जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, माने जो बुनकर, पूरा बुनकर समाज जो कपड़े के साथ जुड़ा हुआ था, तो टेक्सटाइल वर्क्स जो पहले हाथ से बनाते थे, वो यहाँ मशीनों के जरिए मजदूरी लेने के लिए शहरों में आने लगे। तो जैसे एक नाटक में हमने कहा था ताणो वाणो करके, कि यहाँ पे जो हथकरघा वाले मजदूर थे उनमें दो कम्युनिटीज थे, बुनकर जो मुसलमान भी थे और बुनकर जो दलित, जिसे मैं हिंदू नहीं कहती हूँ, वो दलित। हालांकि हिंदुत्व का तब भी कुछ था प्रभाव, क्योंकि दलित है वो शहर के छोर पे रहने वाले, गांव के छोर पे रहने वाले, और जो सवर्ण हिंदू थे उनके ऊपर उनकी रोजी रोटी, उनकी जिसको हम गुजराती में बसवाया कहते हैं, जिन्हें बसाया जाता था, और उनका योगक्षेम, उनका वेलफेयर ये सवर्ण जातियाँ भी करती थी। वे सवर्णों के खेतों में मजदूरी भी करते थे, पूरा कुनबा भी बंधुआ मजदूर भी हुआ करता था। तो वो दलित और मुसलमान दोनों जो मजदूर कम्युनिटीज थी, वो गांव छोड़ के धीरे धीरे शहरों में आने लगे, बसने लगे। तो मिलें हुई, कारखाने हुए, तो चालियां भी होने लगी। अब यहाँ चाल कैसे हुई? अब चाल, या जिसको हम चाली कहते हैं गुजराती में, अंग्रेजी में चौल कहते हैं, तो ये जो पूरी जो मजदूर बस्तियां, वो मजदूर बस्तियां अपने कुछ पुराने ढंग से ही बनने लगी थी। माने अब जैसे एक ऐसा विचार है कि यंत्रीकरण होगा तो, या शहरीकरण होगा तो कास्ट सिस्टम जाएगी, हम ऐसा मानते हैं, हम जो मार्क्सिस्ट है। लेकिन भारत के बारे में ये बात पूरी सही नहीं हो पाई है, आज तक नहीं हो पाई है। अभी मुझे लगता है कुछ हफ्ते पहले चंदूभाई मेहरिया ने, दलित चिंतक है, निरीक्षक में बहुत अच्छा लेख है कि शहरीकरण से क्या जाति व्यवस्था दूर हुई। तो कुछ हिसाब से अड़ोस पड़ोस में रहने लगे दलित और मुस्लिम। बिना दलित जाति के भी कुछ ग्रामीण लोग, जिसमें हमें कहानियों वगैरह में मिलता है, जिसे हम आज ओबीसीज वगैरह कहते हैं, और वहाँ तक कि जो ब्राह्मण भी थे गाँव के, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, तो उनका भी गांव का जो पूरा महाजन टूटने लगा। यजमानी, जिसको जजमानी कहते थे, तो उन लोगों ने भी यहाँ पे आना शुरू किया था। तो चौल में एक तरह से बहुत छोटे पैमाने पर मिश्र बसाहत हुई, बस्तियाँ हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि कुछ हिंदू, ज़्यादा दलित और ज़्यादा मुस्लिम, ऐसे चौल में जैसे थोड़ा बहुत विभाजन हुआ। लेकिन तब मजदूरों में एक जो समानता थी, वो दलित और मुस्लिम मजदूरों में रहन सहन, खान पान की एक समानता थी। और जो जिनको दोनों को उस वक़्त भी समन्वय हम कहते हैं, तब मैंने पिछले हफ्ते शुरू में कहा था कि क्या समन्वय सही में था। वो पंडित लोग कहेंगे कि समन्वय था, लेकिन कभी कभी हमें एक क्रिटिकल थिंकिंग भी करना चाहिए इन मुद्दों पर। तो मुझे लगता है कि तब रहन सहन और खान पान में दलित और मुस्लिम को एक दूसरे के साथ मेल मिलाप था, जिसको गुजराती में कहते हैं कि यहाँ से वहाँ खाना जाता था, यहाँ से वहाँ खाना जाता था।
उनके चूल्हे की आग से इनका चूल्हा भी जलता था। तो हम ये चीज़ें देखते आए हैं। फिर भी एक तरह से थोड़ी बहुत दूरी भी थी, क्योंकि आखिरकार दोनों मजहबों में एक दूसरे के बारे में एक तरह से थोड़ा बहुत तनाव नहीं बोलेंगे, लेकिन भिन्नता तो है ही। तो मजदूरों में भी ऐसा एक हुआ कि जिसको हम दर्द का रिश्ता कहते हैं, वो गरीबी का रिश्ता तो था, लेकिन फिर भी कहीं पर एक ऐसा समझौता तब देखने को मिला कि जो हम मार्क्सिस्ट कहते हैं ना कि यंत्र आएंगे तो ज्ञाति जाएंगे। तो एक समझौता परस्त एक माहौल हुआ कि तुम तुम्हारा करो, हम हमारा करें। मजदूरी में, खाने पीने में, शादी ब्याह में, तीज त्योहार में हम एक दूसरे का ज़रूर साथ देंगे, देते आए हैं। तुम तुम्हारा धर्म, हम हमारा धर्म। और ये समझौता बहुत साल तक चला, अभी तक चला। अभी हम ज़रा आगे जाएंगे तब बात करेंगे। और तब ये जो अहमदाबाद शहर है वह हालांकि सुन्नियों का शहर माना जाता था। ये जो सूफियों का यह जो एक पूरा प्रभाव था, पहले से हम उस वक्त मैंने कुछ सूफियों के बारे में बात की थी। तो इनकी जो दरगाहें थी, वो दरगाहें ये जो पूरी एक जो जिसको हम कहेंगे कि वर्किंग क्लास, गरीब, श्रमजीवी जो सारे तबके थे, उनके लिए ये दरगाहें आस्था के कॉमन प्लेसेस थे। ये जो जिसको हम गरीब दलित हिंदू कहते हैं, दलित और हिंदू, वे लोग मुसलमानों की दरगाहों में हमेशा जाते थे, मन्नत मानते थे, अपने बच्चों को वहाँ ले जाते थे। जो जिसको आज हम हिस्टीरिया कहेंगे, क्योंकि साइंस आया तो हमें पता चलने लगा है कि महिलाओं के लिए बीमारियों की वजह क्या हो सकती थी। तो वो सारी चीज़ें थी तब, लेकिन वो सारी चीज़ों की तकलीफ़ों को लेकर के वहाँ दरगाहों में जाया जाता था। अहमदाबाद के 5 पीर तो है ही मशहूर, और हर एक एरिया में, जैसे दरियापुर में दरिया खान का, यहाँ पर आप जाओ उस्मानपुरा में तो उस्मान का, वहाँ शाह आलम में जाए तो शाह आलम का, वटवा में जाए तो कुतुबुद्दीन का, सरकेज तो है दूर। और मुझे लगता है कि शाहपुर में, खानपुर में, हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पर भी ये जो दरगाहें थी, यानी सूफियों की खानकाहें थी, और है भी आज, बच तो गई है कुछ कुछ, तो वहाँ पे महिलाएं भी जाती थी। उस दिन बाद में महिलाओं के बारे में बहन तनुश्री बहन ने बताया था कि अहमदाबाद की जो मस्जिदें, माने रॉयल मस्जिदें भी थी, अहमद शाह, मोहम्मद शाह सब ने बनवाई, वहाँ पे मुलुक खाना माने महिलाओं के लिए अलग नमाज पढ़ने वाली जगह थी। तो अहमदाबाद का जो एक मैंने लिखा शहरनामा में, और मुझे रत्नमणि राव ने भी सिखाया है, उन्होंने सिखाया, देखने का नज़रिया दिया कि अहमदाबाद का इस्लाम भारत के बाकी शहरों के या बाकी तबकों के, बाकी ज़िलों के, राज्यों के इस्लाम से अलग है। वो आम लोगों का इस्लाम है, जहाँ पे समन्वय था। ये दरगाहें सबके लिए थी, आज भी है, और देखेंगे कि कितनी बाकी है, कितनी नहीं है, देखते हैं। तो ये दरगाहों ने, मुझे लगता है कि अहमदाबाद की जो एक एकता थी, वो उसको बरकरार रखने में बहुत बड़ी एक, जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और दूसरा, दरगाहों में औरतों को जाने की छूट तब भी थी, आज भी है। तो इस्लाम के बारे में या और किसी सवर्ण धर्मों के बारे में भी, शिव मंदिर में महिलाएं जा सकती है, स्वामीनारायण मंदिर में महिलाएं अंदर तक नहीं जा सकती है, वैष्णव मंदिर में भी महिलाएं अमुक हद तक जा सकती है, बाकी नहीं जा सकती है। माता के और शिव मंदिर में पैसे दे करके आगे जा कर के थाल या आरती कर सकते हैं। तो वो चीज़ें रामदेव पीर के, अब देखिए रामदेव पीर दलितों के अधिष्ठाता, फिर भी उन्हें पीर कहा जाता है। ये पूरे गुजरात की विरासत है। राजस्थान के जोधल पीर माने जोधपुर के थे, लेकिन गुजरात के सारे दलित, सारे जिसको हम कारीगर कौम कहते हैं, शूद्र कौम कहते हैं,
उनके सारी कौमों ने रामदेव पीर को अपना पीर बनाया। और ये पीर जो इनको इल्काब मिला था वो तो हिंदू राजा के बेटे थे। हाँ, द्वारकाधीश के आशीष से उनके पिता और माता बहुत बड़ी उम्र के बाद रामदेव पीर का जन्म हुआ था। लेकिन इनको पीर किसने बनाया कि कुछ सूफी द्वारका तक यात्रा करने के लिए गए थे, खाना कम पड़ा तो रामदेव ने उनको खाना खिलाने का ये किया कि खीर बचेगी, आप जितनी भी खाओ कोई बात नहीं। तो वो जो खीर का जो पात्र था तो उसमें से खीर खाते ही गए, लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। और सारे पीरों ने, सारे यात्राओं ने वहाँ पे पेट भर के खाना खाया। तब उन पीरों ने देखा कि इसमें एक दैवी ताकत है, तो उन लोगों ने रामदेव पीर को पीर का इल्काब दिया। तो ये पूरी जो विरासत है वो पूरे गुजरात की विरासत है। गुजरात के कई सारे शहरों में ऐसी खानकाहें, दरगाहें हैं जहाँ पे गरीब, जिसको हम गरीब कहेंगे, वो जूनागढ़ से लेकर के ठेठ दीव में भी बहुत अच्छी दरगाहें हैं, दमन में भी है। तो वहाँ से वहाँ तक गुजरात ने ये जो सूफीज़म को आम लोगों के ज़रिए बरकरार रखा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समन्वय कुछ हद तक तो अभी भी बरकरार है। और दूसरा, श्रमजीवियों ने और महिलाओं ने भी ये इस्लाम का, सूफीज़म का ये एक जो पूरा एक स्वरूप बरकरार रखा है। अब ये लोग तो कम पढ़े लिखे, जाहिल, हमारे जैसे रैशनलिस्ट लोग कहेंगे कि वो तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें अपने समाज में पूछता कौन है? न तो औरतों को कोई पूछता है, न तो दलितों को कोई पूछता है, न गरीब मुसलमान झूला हो, बुनकर हो, पिंजार हो, और सबको कौन पूछता है। लेकिन फिर भी ये लोग है तो दुनिया है, ये लोग है तो शहर है, ये लोग है तो शहर की, देश की, दुनिया की समृद्धि है, क्योंकि उनके पसीने ने ये पूरी कायनात को सींचा है, या महिला हो या श्रमजीवी हो। तो यहाँ पर एक हम कहेंगे कि हालांकि रिलीजियस तत्व इसमें है, आस्था का कभी कभी हमें बहुत ही इरेशनल स्वरूप भी देखने को मिलता है, फिर भी इन तबक्कों से ये समन्वय का एक पूरा जो हमारी जो विरासत है वो अभी भी बाकी बची है। तो ये देखने वाली चीज़। इसकी शुरुआत महाजन एरिया में हुई थी। तब कोई राइट्स नहीं हुए थे, अंदर के कोई झगड़े नहीं होते थे, लोग, श्रमजीवी लोग अपना अपना काम करते थे। जब से 1931 में बड़ी हड़ताल हुई थी टेक्सटाइल मिल वर्कर वगैरह की, तब दोनों ने साथ मिल करके, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ने दलित, हिंदू मुस्लिम, सब ने साथ मिल के ये जो पूंजीवादी मसले थे उनके ऊपर होते हुए अन्याय थे, उनकी जो कम रोजगारी थी, कम वेतन था, उसके सामने अपने एक आवाज़ को एक करके लड़त लड़ी थी। उसके पहले जब 1917 में प्लेग हुआ और मज़दूरों ने प्लेग का स्ट्राइक करके प्लेग का जो मुआवजा था, माने हर एक फैमिली में, जैसे अभी पैंडेमिक हुआ तो हर एक फैमिली में से कोई ना कोई तो गया है, कोई ना कोई तो सीरियसली बहुत बीमार भी हुआ है, खर्चा भी बहुत हुआ है। तो उस समय प्लेग ने पूरे अहमदाबाद को जिस तरह से ग्रस्त लिया था, कुछ पेरिफेरल गुजरात में भी हुआ था, तो मजदूरों ने उसके लिए मुआवजा मांगा। तब इन मिल मालिकों ने इसका विरोध किया कि भाई क्यों। तो उन लोग, ये जो देखिए कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये जो महाजन दान, पुण्य और दया धर्म से जो सारी चीज़ें पूरे गुजरात में और ख़ास करके अहमदाबाद में हम कहेंगे यहाँ चबूतरे होते हैं, माने हर एक स्ट्रीट्स में, हर एक रेसिडेंशियल स्ट्रीट्स में, जिसको हम पोल कहते हैं, वहाँ पंखियों के लिए, चिड़ियों के लिए चबूतरे होते हैं, जिसके ऊपर
दाने और पानी रखा जाता है। यहाँ पोलों में हवाड़े होते हैं, माने पानी का एक चौबारा, जहाँ पे गाय भैंस वगैरह मवेशी, इवन गधे, और उस वक़्त तो खच्चर भी घूमते थे, ऊँट भी थे, बैल भी थे, वो सब पानी पीते थे। हरी घास, सूखी घास का चारा भी रखा जाता था। वो सब दान पुण्य के हिसाब से होता था। फिर कुत्तों के लिए हर एक पोल में एक ऐसी बड़ी पत्थर की चाट रखते थे, जहाँ पे लोग खाना छोड़ देते थे तो कुत्ते गाय सब आकर के खाते थे। माने एक तरह से देखा जाए तो जीव दया का जो जैन और वैष्णव संप्रदायों का एक तरह से ये जो मंत्र था, वो अहमदाबाद की रेसिडेंशियल एरियाज़ में, जिसको हम पोल कहते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ उसको बिखराव हम देखते हैं। तो वो चीज़ें भी हमारे विरासत में है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये शहर, ये सेठिए, ये मिल मालिक, ये जिनको अपने को, जो लोग अपने को महाजन मानते थे, वो लोग कुत्तों के लिए, चिड़ियों के लिए, गाय बैल भैंसों के लिए ये इतनी जीवदया के छोटे मोटे साधन पूरे शहर में फैला के बनाए थे, फिर भी मजदूरों के मुआवजे के लिए इनकार किया, मजदूरों को स्पृश्य के लिए इनकार किया। तो ये सारी चीज़ों को बरकरार रखते हुए इस शहर का एक पूरा जो महाजन तबका था, जो सवर्ण तबका था, वो समृद्ध होता गया इनके पसीने से। तब गांधी जी यहाँ पे थे, कुछ सीनियर और कंसर्न सिटीजन्स को साथ में लेकर के सेठियों को मनाने का उन्होंने एक पहल की, और मजूर और महाजन, माने एक तरफ मजूर है, दूसरी तरफ महाजन है, और दोनों को मिलाने की कोशिश की, और महाजनों को समझाने की भी कोशिश की कि ऐसी हालत में मजदूरों के वेतन के बारे में, उनके वर्किंग आवर्स के बारे में, और ख़ास करके रोग या बीमारियों के मुआवजे के बारे में महाजनों को कुछ सोचना चाहिए। कुछ उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए समय समय पर। वे सारी चीज़ें गांधी जी ने महाजनों के सामने रखी। तब मजदूर तबकों से, मजदूर चालियों में से हिंदू, मुसलमान और दलित तीनों कम्युनिटीज़ के जो लोग थे, आगेवान थे, अग्रेसर थे, उन लोगों ने गांधी जी के साथ बैठ कर के ये सारी अपनी मांगे उनके सामने रखी थी, जो गांधी जी ने महाजनों के सामने रखी। कुछ का स्वीकार किया गया, कुछ का नहीं। तो मजूर महाजन का जन्म इस तरह से हुआ। ये भी अपने आप में गुजरात का एक टिपिकल, मैं मजूर महाजन को समन्वय का एक वेरी, मुझे लगता है कि अच्छा तो नहीं है, लेकिन महाजन को और मजदूर को साथ में बिठाने का। मैंने किसी नाटक में थोड़ा बहुत कटाक्ष भी किया है कि एक चाय की रकाबी है, एक बाजू से शेर चाय पी रहा है और सामने बकरी चाय पी रही है। यहाँ हमारे वाघ बकरी चाय की बहुत, ये भी एक बहुत बड़ी महाजन संस्था है, अभी तक भी है, अच्छे लोग हैं, बहुत सारे वेलफेयर के काम करते हैं, बहुत सारे आजकल जिसको CSR कहते हैं वो सारे बहुत करते हैं, उस वक्त से करते हैं। लेकिन ये मजूर महाजन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये क्रिटिकल थिंकिंग संस्कृति के बारे में करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आप आरती उतारते ही जाएंगे ये सारी चीज़ों की। ये यहाँ ऐसी मस्जिद थी, इसने ऐसी बनवाई, ऐसे मंदिर बनने दिया, मंदिर नहीं बनने दिया, तो मस्जिद बनवाने के लिए हिंदुओं सेठियाओं ने दान दिया और मंदिर बनवाने के लिए मुसलमानों ने दान दिया। वो सारी आरतियाँ तो हम जानते हैं, वो तो क्योंकि अगर शहर में शांति और सलामती बनी रहे तभी इनकी समृद्धि बनी रहेगी। तो ये एक एंगल भी हमें देखना चाहिए। तो समन्वय के पीछे एक ये एंगल भी है कि आर्थिक समृद्धि को बरकरार रखने के लिए सामाजिक शांति, जैसे आज जिसको समरसता कहते हैं, ऐसा कुछ, लेकिन वो समन्वय अच्छी बात है। समन्वय कौन रखता था? ये गरीब लोग रखते थे, श्रमजीवी लोग रखते थे। पिछली बार एक बहन ने कहा था कि ये स्वार्थमूलक
जो महाजन थे वो स्वार्थमूलक समन्वय की कोशिशें करते थे, लेकिन जो साथ में रहने का, सह अस्तित्व का सही मीनिंग, सही अर्थ ये श्रमजीवी लोग और जो निचला मध्यम वर्ग था, निचले मध्यम वर्ग में भी खास करके महिलाएं जो हर घर में कुछ न कुछ हस्तकला के काम करती, या बीड़िया बनाने का, या अगरबत्तियाँ बनाने का, या छोटे मोटे सिलाई काम करने का, ये पूरे अहमदाबाद की और गुजरात की, खास करके अहमदाबाद की पूरे श्रमजीवी तबके की तीनों कम्युनिटी की महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर तब से लेकर के आज तक, आज आप वटवा में जाओ, आज आप अहमदाबाद की छोटी मोटी पोलों में जाओ, जो श्रमजीवी भी है और जो निचला मध्यम वर्ग हम जिसको कहते हैं और बीच वाला मध्यम वर्ग, वहाँ की सारी महिलाओं ने घर में पापड़ बेलकर, वड़ियाँ बेलकर, अचार बनाकर, ये सारी काम घर में करके, जो घर की चार दीवारी के अंदर रहकर भी श्रम करते हैं और वो उपार्जन भी करते हैं। माने उन्होंने उत्पादन और उपार्जन दोनों का बैलेंस बनाए रखा इन तबकों ने, और उसमें साथ में काम करने वाली महिलाएं, और उसका उदाहरण हम पोलो में और श्रमजीवी चालियों में तो देखते आए हैं इतने सालों से, 150-200 सालों से। लेकिन आज हम इस सेवा में भी कुछ हमारे रिजर्वेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन सेवा वालों ने ये ट्रेडिशन को बरकरार रखा है। तो ऐसी चीज़ें अब मार्केटिंग होने लगा है, तो ये अपने आप में उपार्जन का एक जो जिसको कहते हैं कि मैथमेटिक बदला भी होगा, उपार्जन का ज्योग्राफी भी बदली है, उपार्जन की जो कैलकुलेशन है वो भी बदले हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने अपने चालियों में, अपनी अपनी पोड़ों में रह के उपार्जन करते रहे हैं और श्रम में अपना एक प्रदान, आर्थिक प्रदान देते रहे हैं, महिलाएं और गरीब तबके के लोग। ये अहमदाबाद की एक समन्वय की मैं एक निशानी कहती हूँ। पोलो के बारे में हम बात करेंगे तो ये पोड़ चालियों से अलग है। पोड़ चालियाँ होने से पहले पोड़े हुई थी। अहमद शाह के पाटण में भी पोले थी, अहमदाबाद में हुई, खंभात में भी थी मुग़लों के ज़माने में, बड़ौदा में भी, नडियाद में भी, तो हर जगह में पोड़ थी। पोड़ में कौन रहते थे? पोड़ में निचला मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और बड़े बड़े सेठिए साहूकार भी रहते थे। लेकिन कौन? पोले अपने आप में सबसे पहला गेटो थे। वहाँ पे पोलो में कभी कभी सुनाई देता है कि 18 वर्ण नहीं, हिंदू थे। इनके जो ये उपले तबके और मध्यम तबके थे वो पोलो में रहते थे, और अड़ोस पड़ोस में खड़कियाँ होती थी। तो ब्राह्मण की खड़की या ब्राह्मणवास या पटेलवास, ये जैसे मीठा खड़ी है, ये पुराने शहर के पोलो से बाहर आए हुए नवरंगपुरा है, वेजलपुर है, वस्त्रापुर है, मीठा खड़ी है, उस्मानपुरा है, कोचरब है, ये सारे पुराने जो पुराने शहरों से बाहर, माने वर्ल्ड सिटी से बाहर जो आए वो भी उसी डिज़ाइन पे बने हैं। माने वो अपने आप में गेटोज है। गेटोज तो हम हिटलर के ज़माने से ये शब्द मिला है और हम यूज़ करते आए हैं, और 2002 के बाद दुनिया को पता चला कि अहमदाबाद में, गुजरात में गेटोज है। गेटोज अहमदाबाद में, गुजरात में कई सालों से है। जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ तब से है, तब मुसलमान बादशाह भी थे, मुग़ल बादशाह भी थे, और हिंदू राजा भी थे, राजपूत राजा भी थे। तो पोलो की बस्ती पूरी, फिर जब मुसलमानी शासन प्रबल था अहमदाबाद में और गुजरात में, तब कालूपुर वगैरह में भंडेरी की पोड़, ऐसी पूरी की पूरी मुसलमानों की पोड़ है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, पूरा अहमदाबाद घूम के देखा कि एक ही पोल में हिंदू और मुसलमान साथ में रहते हैं। पिछवाड़े में रहते होंगे, जैसे काचवाड़ा है वहाँ पे मुसलमान है, लेकिन ढालनी पोड़ में हिंदू है और सवर्ण हिंदू है। पखालीनी पोड़ में हिंदू है। रायपुर में यहाँ पे भावनी पोड़ है तो हिंदू है, लेकिन उसके पीछे कादोपुर वाला, या यहाँ दरियापुर में आप देखेंगे तो
वाड़ी गांव में पटेल और वागे माने देवी पूजक, वो पीछे, वो अस्पृश्य नहीं है फिर भी गांव से बाहर माने मोहल्ले से बाहर। तो ये पूरा अपना 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 कौम का, अपनी अपनी ज्ञातियों का, अपने अपने समुदायों का, यहाँ तक कि सौराष्ट्र के औदिच्य एक में रहेंगे और सूरत के अनाविल दूसरे में रहेंगे। तो पूरे गुजरात में पोल तो थी, शहर आए तो पोल भी आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आए तो चाली भी आए, लेकिन घेटोस का एक जो पूरा जो मानसिकता, वो मानसिकता बरकरार। क्योंकि मेरे हिसाब से इस देश की सबसे जटिल समस्या आर्थिक व्यवस्था तो है ही, आर्थिक भूखमरी, आर्थिक तंगी वगैरह तो है ही, लेकिन फिर भी ये जो सामाजिक समस्या है, कास्ट, ज्ञाति व्यवस्था, और उसके चलते ये जो आर्थिक भिन्नता भी हमें उसी के ऊपर देखने को मिलती है। अब धीरे धीरे फर्क तो आने लगा है, लेकिन फिर भी आज एक बहुत ही करोड़पति दलित को हवेलीनी पोल में घर नहीं मिलेगा, या नवरंगपुरा स्वस्तिक सोसाइटी में बंगला नहीं मिलेगा। वो 10 करोड़ दे या 20 करोड़ दे, उसके बाजू में अगर कोई पंड्या, दवे, पंडित, शाह, परीख होंगे तो उसको वहाँ नहीं, फ्लैट्स भी नहीं। तो आजकल ये जो हम कहेंगे कि ये 85 के बाद या तो बाबरी मस्जिद के बाद जो हिंदुत्व का एक अपराइज हुआ है, एक आरएसएस ने अपना एजेंडा हिंदुत्व को फैलाने का किया है, हिंदू से हिंदुत्व। तो हम कहेंगे कि अभी अभी ये सब हुआ है कि फ्लैट में मुसलमान को या दलित को, सवर्णों के फ्लैट में जगह नहीं मिलती है। नहीं, ये पोले उसी डिज़ाइन पे बनी थी। कुछ हद तक चालियों में भी ये चीज़ें रही, और ऐसे गाँव में जो वास थे, वाड़े थे, पोल थे, पाड़े थे, पाड़ा भी है हमारे अहमदाबाद में, देवशानो पाड़ो वगैरह वगैरह, तो वो सारे ज्ञाति के ऊपर, और उसमें ज्ञाति के अनुसार या तो रिलीजियस संप्रदाय माने जैन है तो जैनों की जहाँ पे ज़्यादा बसी है, श्रावणानी पोल, देवशानो पाड़ो या पतासानी पोल, या तो वहाँ पे जैन मंदिर माने देरासर होना ही चाहिए। क्योंकि लाइक मुस्लिम्स दे हैव टू गो टू देरासर फॉर अम्टीन टाइम्स इन अ डे, प्रतिक्रमण के लिए, उनकी जो एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो इनके लिए इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन हुआ, तो वहाँ पे देव मंदिर, देवस्थान भी हुए। पुष्टि संप्रदाय भी जहाँ जहाँ पे जो बनी है, जिसको वैष्णवाणियाँ कहते हैं, तो वहाँ पे वैष्णव हवेलियाँ हुई, जो पोल की इसकी विसिनिटी में माने नज़दीक वाले पोलों में जो वैष्णव रहते हैं वहाँ पे हवेलियाँ हुई। तो ये पूरी चीज़ें तो हमारे रहन सहन की एक डिज़ाइन थी और है, जो देखते हैं कि समन्वय में कितना, हम समन्वय का एक यूटोपिया जब बात करते हैं, समन्वय के यूटोपिया की, तो अपने आप में इसको हमें क्रिटिकली देखना चाहिए। सही में हालांकि लोग रहते थे, हालांकि लोगों को रहना होगा, हालांकि लोग को रहना पड़ता है, कितना समाधान करके। तो समन्वय से हमें धीरे धीरे इस शब्द की ओर जाना पड़ेगा कि समाधान का शहर। अहमदाबाद समन्वय का शहर पता नहीं, समाधान का शहर, लेकिन समाधान अच्छा है। समाधान करने पर भी हम जिंदा रह सकते हैं। तेरे बाप ने मेरे झरने से पानी पिया था तो ला मैं तुझे खा लूँ, ये वाली जो आज राजनीति चल रही है, सामाजिक मानसिकता चल रही है, संस्कृति का जिसको बोले सत्यानाश हो रहा है, इसी मुद्दे पर कि तूने नहीं पिया है मेरे झरने से पानी, तेरे बाप ने पिया, तेरे दादा ने पिया, तेरे परदादा ने पिया, आ मैं तुझे खा जाऊं, ये वाली राजनीति तब नहीं थी, उतना हम कह सकते थे, जरूर कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें आशा रखनी चाहिए कि ऐसा हम कह सकें आगे जाकर के। तो ये जो दरगाहें हैं वो उनमें उन लोगों ने एक जो ट्रेडिशन रखा था उसके बारे में 5 मिनट में बात कर लूँ, 2 मिनट, कि यहाँ पर ऐसी मॉन्यूमेंट्स भी है। जैसे सबसे पहला मॉन्यूमेंट है हमारे 3 दरवाजा में एक अखंड दीवा होता है, वो भद्रकाली के लिए होता है, और मुसलमान शासन में भी हुआ करता था, मराठा शासन में भी हुआ करता था, और आज भी होता है। और वो सबसे पहले
जब जब दरवाजे थे 3 दरवाजे में, तो जो दरवाज़ा खोलता था वो जो चौकीदार थे वो यहाँ दिया जलाते थे। वो मराठे भी हो सकते थे, राजपूत भी हो सकते थे और मुसलमान भी। आज अब जाएंगे 3 दरवाज़ा तो वहाँ पे मुसलमान जो जिसको हम हॉकर्स कहते हैं वो अपनी फेरी करते हैं, वो अपनी दुकानें छोटी मोटी लगाते हैं, फुटपाथ पे छोटा मोटा शूज स्ट्रिंग्स से लेकर के हाउस होल्ड थिंग्स तक का व्यापार करते हैं। वो सारे वहाँ पे दिया जलाते हैं, मुसलमान जलाते हैं। भद्रक के किले में एक ताले वाले पीर है, एक जो दरगाह है वहाँ पे कई सारे आप ताले कुंजिया सब देखेंगे। क्यों कि भद्रक का दरवाज़ा अहमदाबाद का प्रवेश द्वार कहा जाता था। तो उधर से आने वाले जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए पीर को ताले का अर्पण करते थे। और आज भी आप जाओ भद्रक का किला देखो, वहाँ ताले हैं, कई सारे ताले कुंजिया है। तो एक कभी कभी बहुत दुख होता है कि इन ताले वाले पीर ने इस शहर का सुरक्षण क्यों नहीं किया। ये भी एक चीज़ है, ये भी चीज़ों को सोचना चाहिए। ये दिया वाला अंदर आगे जाइए तो एक बहुत अच्छी एक मॉन्यूमेंट है 3 दरवाजा के बीच वाले दरवाजे के लेफ्ट में अंदर वाली ओर। जब काका करके पेशवाओं के एक माने 18 सेंचुरी में पेशवाओं के एक मंत्री थे जिसको काका साहेब कहते थे, वो पेशवा मराठा थे। उन्होंने फरमान किया था कि पिता की संपत्ति में स्थावर या जंगम पुत्री को भी हक मिलना चाहिए। वो उसका पूरा शिलालेख है, आप थोड़ा सा मुड़ के देखेंगे तो वो शिलालेख आपको देखने को मिलेगा। सारे दरगाही इन चीज़ों में जाते हैं। फिर अहमद शाह बादशाह की जो मज़ार है जुम्मा मस्जिद के पीछे वाले एरिया में, जिसको राजा का हजीरा कहते हैं, बादशाह का हजीरा कहते हैं, सामने रानी का हजीरा है। ये हजीरों में भी महिलाएं जाती है, अंदर तक नहीं जाने देते। कहाँ पे? बादशाह के हजीरे में महिलाओं को अंदर तक नहीं जाने देते, लेकिन बाहर जा कर के वो मन्नतें मांगते हैं। हिंदू भी जाते हैं, दलित भी जाते हैं, जाते थे। यहाँ पर मैं थोड़ा पॉज लूँगी। फिर आप देखो तो पीराना के बारे में बाद में कहूँगी, लेकिन ये अपना वटवा, ये अपना शाह आलम, वहाँ पर भी महिलाएं जाती है, हर एक तबके की महिलाएं जाती है। अलबत्त मैंने कहा कि जिनको हम जाहिल कहते हैं, जिनको हम इरेशनल कहते हैं, वो तबके, वो जाति, वो आर्थिक तबके और सामाजिक तबके भी। लेकिन दरगाहों में इन महिलाओं ने सूफीज़म को ज़िंदा रखा है। लेकिन अब देखिए फ़र्क होने लगा है। कहाँ फ़र्क हुआ? 2002 में ये फ़र्क बहुत ही उजागर हुआ। बीच वाला है, मैं बताऊंगी, लेकिन बीच वाला आर्थिक ज़्यादा है। यहाँ आस्था की बात करें तो आस्था से शाह आलम में सबसे पहले माने 2002 की 27 को ये गोधरा कांड हुआ। गोधरा के बाद अनु गोधरा 28 से शुरू हुआ, तो 28 की दोपहर से शाह आलम के रोज़े में मुसलमानों को बसाया गया। नरोड़ा पाटिया से ला करके, दरिया खान से ला करके, पूरे अहमदाबाद से और गुजरात से भी भाग के आने वाले शाह आलम के रोज़े में अपनी सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ी छावनी वहाँ पे थी, कैंप। वहाँ पे एक नरसिंह भगत का अखंड दिया था। जैसे 3 दरवाजा में माता का है, वैसे नरसिंह भगत का, जो नरसिंह भगत का मंदिर हम जाते हैं अहमदाबाद तो निकोल, और वहाँ पे नरसिंह भगत का मंदिर है। माने ये नरसिंह जी का मंदिर है। माने ये जो हिंदू दशावतार में ये जो प्रहलाद को जिसने बचाया था वो नरसिंह जी का मंदिर है। लेकिन वहाँ पे एक नरसिंह भगत करके थे, और यहाँ शाह आलम साहब जो थे उनके दोस्त थे, वो साथ में शतरंज खेलने के लिए आते थे, साथ में अपना पानी लेकर के आते थे, अपने पान का डिब्बा भी लेकर के आते थे। लेकिन दोनों, एक सूफी और दूसरे भगत, दोनों साथ में शतरंज खेलते थे। तो एक समन्वय की जो जगह थी, तो भगत तो गए, तो शाह आलम साहब ने और उनके अवसान के बाद भी उनके जो यहाँ पे मुसलमान मुंजावर वगैरह थे, उन लोगों ने नरसिंह भगत का वहाँ पे दिया शुरू किया था। 2002 में वो दिया बंद हो गया।
2002 में नरसिंह भगत के चलते हर एक उर्स में, शाह आलम के उर्स में नरसिंह भगत के मंदिर से लड्डू आते थे। लड्डू बंद, वहाँ से लड्डू बंद हो गए, यहाँ से दिया बंद हो गया, तो ये आस्थाएं डगमगाने लगी। ये 2002 का हुआ। पीराना अभी कल की परसों की बात है कि यहाँ पे मस्जिद थी, सुन्नी मस्जिद, वो लोग वहाँ पे अपना नमाज पढ़ते थे, लेकिन पीराना का दरगाह, जो इमाम शाह पीर की दरगाह जो है, वहाँ पे सारे लोग जाते थे, सभी कम्युनिटी के। लेकिन उसके इस तरफ पे सतपंथी जो एक हिंदू पीराना संप्रदाय कहते हैं, जिसमें कड़बी और रबारी लोगों का वर्चस्व था, क्योंकि ज़मीनें वहाँ उनकी थी। उन लोगों के पुरखों ने बाबा इमाम शाह को ये अपनी जगह देने के लिए ज़मीनें दी थी। तो अब जैसे मैंने कहा कि हमारे पुरखों ने तो दी थी, लेकिन अब क्या, तो इन कणबियों ने और रबारियों ने वो ज़मीन वापस हथिया ली है। अब पहले मंदिर में जो पुजारी थे वो हिंदू थे, कणबी पटेल, जिसको काका कहते थे, और वो दरगाह में भी दिया बाती करते थे। ये पूरी एक अखंड दिए की, वहाँ पे एक पाइप है, वहाँ से तेल डालते थे, और वहाँ सामने जहाँ इमाम शाह की जहाँ पे कब्र थी, वहाँ पूरी अखंड दिए की परंपरा होती थी। अब वो परंपरा बंद कर दी गई। 2002 में वहाँ पर भी दंगे हुए, वहाँ जो मुसलमान आसपास में रहते थे वो भी लूटे गए। धीरे धीरे करके, पहले तो कुछ था, 15 तक था, 2015 तक मैंने अपनी नज़रों से थोड़ा बहुत आवाजाही देखी है, लेकिन बाद में देखा, और अभी पिछले महीने 2 महीने पहले पूरी तीनों जगह सेपरेट हो गई है। दरगाह का ऑलमोस्ट, दरगाह तो है लेकिन उसके ऊपर शिव मंदिर है और माता जी का मंदिर हो गया है। यहाँ सतपंथी अपना एक पीराना पंथ कहते हैं, फिर भी एक निर्गुण परंपरा, जैसे कबीर की है, जैसे दादू दयाल की है, वैसी निर्गुण परंपरा है। बीच में ये सगुण परंपरा है, शिव और माता जी की, जो कणबी करते हैं, और उधर सुन्नियों की मस्जिद है। अब दीवारें हो गई है, बार्ब्ड वायर हो गए हैं। तो आस्था के ऊपर 2002 में जो असर हुआ वो अब धीरे धीरे गहराता जाता है। अब धीरे धीरे समाधान भी जैसे ऐसा लगता है कि कम होने जा रहा है। यहाँ पर देखो तो भारत आज़ाद हुआ, नेहरूवियन समय में थोड़ा बहुत वो समन्वय बरकरार रखने की कोशिशें इतिहास में, शाला कॉलेजों में, अभ्यासक्रम में, रेडियो के कार्यक्रमों में, माने आकाशवाणी में कुछ नाटक, कुछ लेखक ये समन्वय की चीज़ें लिखते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, सिखाते रहते थे। लेकिन जैसे नेहरू का समय समाप्त हुआ, विभाजन हुआ, नेहरू के समय से पहले, माने देश आज़ाद हुआ उसके पहले, लेकिन यहाँ पर विभाजन के बाद टेंशन हुआ था। 47 के 15 अगस्त को यहाँ टेंशन हुआ था, लेकिन राइट्स नहीं हुए थे। बहुत अफवाह आई कि मुसलमानों ने गांधी जी को मार दिया, शादी ब्याह रुक गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने मोहल्ले में, चालों में जाकर के दंगाई लोगों को अटकाने का प्रयास किया था। वो सब गांधीवादी थे। हम जानते हैं गांधी जी ने तो नोआखली में जाकर के क्या किया, तो महेंद्र मेघाणी वगैरह ने आंसू लूछो आव्यो छू करके उसके बारे में तो साहित्य है। कमलाबेन पटेल ने मूल सोता उखड़ेला लिखा है, वो आप अंग्रेज़ी में, हिंदी में, गुजराती में पढ़ सकते हैं, जिसमें जो रिलीफ कैंप हुए थे विभाजन के बाद, जहाँ पे महिलाओं का जो आदान प्रदान हुआ था, अपने आप में वो भी एक क्रिटिकल थिंकिंग मांगता हुआ सवाल है। फिर भी जिस तरह से एक अलग तरीके से समाज को, एक नए समाज को रचने की कोशिशें नेहरू और गांधी ने की थी, वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जाकर के इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद चित्र बदलने लगा।
क्यों लड़ते हैं? फिर बांग्लादेश हुआ, क्यों अलग हुए? क्यों खान पान रहन सहन संस्कृति एक होने पर क्यों अलग हुआ बांग्लादेश? भाषा भी बंगाली ही बोलते हैं, रिलीजन। तो इसको भी हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था। कुछ लोग के चलते कुछ लोगों की सत्ता की भूख के चलते देश अलग होते हैं, टुकड़े होते हैं। और उसके पीछे जो पूरा इकोनॉमिकल एक फैक्टर है वो भी हमें देखना चाहिए। पिछली बार सोमनाथ के बारे में भी बात की थी। ऐसे पुनः निर्मित मंदिर अब होने का शुरू हुआ, उसकी शुरुआत सोमनाथ ने की थी। तो मेरे लिए सोमनाथ एक कट ऑफ लाइन है हमारे जैसे लोग के लिए कि आज अयोध्या करने की हिम्मत आई है। कब आई है? क्योंकि वहाँ सोमनाथ हुआ था। इसीलिए तो सोमनाथ से अयोध्या की पूरी यात्रा, माने पूरे आरएसएस के नए हिंदुत्व एजेंडा के अभियान में शुरुआत गुजरात से की, सोमनाथ से की। हिंसाचार यहाँ 85-86 में रथ यात्रा से हुआ, जो रथ यात्रा को कुछ लोग समन्वय का कहते हैं, क्योंकि हर मोहल्ले में जाती है रथ यात्रा। तो मुस्लिम मोहल्लों में से उसका स्वागत भी तब से इस बार 100 समथिंग में 150 से ज़्यादा रथ यात्राएं हुई। तो हर साल मुसलमानों ने वहाँ पे स्वागत किया है। लेकिन 86 में वहाँ पे तब किसका शासन था? बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस का शासन था। तो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कम्युनल वायलेंस से फायदा किसको होता है? जिन्होंने अपने अपने अलग अलग वोट बैंक बनाए हैं कम्युनिटी के अनुसार, जिनके वोट बैंक में कुछ लोगों ने खाम बनाया था, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और माइनॉरिटीज, उसी के पद चिन्ह पर अलग अलग तबके के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के लोगों को, अलग अलग ज्ञातियों के लोगों को अपना अपना वोट बैंक बनाने की शुरुआत तब से हुई थी जब ये रथ यात्रा वाली हिंसा भी हुई थी। 69 में क्या हुआ था? ये तो हम 85-86 की बात करते हैं। 69 में क्या हुआ था? तब किसकी शासन थी, किसकी सत्ता थी? तो तब ये सब धीरे धीरे करके टूटने को हुआ था। और 8वें दशक में टेक्सटाइल मिल्स बंद होने लगी। वो महाजनों ने अपना चेहरा बदलने की शुरुआत की, क्योंकि लिबरल मूडी का ग्लोबलाइजेशन और डॉलर के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों ने अपने धंधे बदलने शुरू किए, महाजनों ने। टेक्सटाइल पुराना होने लगा, मिलों के सांचे, मिलों के मशीन पुराने हुए थे, उनको नई बनाने और परमानेंट मजदूरों को रखने के बजाय छूटक मजदूरी। रिलायंस माने यहाँ बटन बनते हैं, यहाँ रेवन बनता है, यहाँ कॉटन बनता है, वहाँ पैंट की एक पैर बनता है, दूसरा पैर वहाँ बनता है, कॉलर वहाँ बनता है, साड़ी वहाँ बनती है। तो जिस तरह से इंडस्ट्री का, कपड़े की इंडस्ट्री, जिसको इस शहर को मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर का जो बिरुद दिया गया था, उसको इस नई टेक्नोलॉजी ने, नए मूडी के जो सोच विचार थे, मूडीवादियों के सोच विचार थे, उन लोगों ने तोड़ने की शुरुआत की। तो मिलें एक एक करके बंद होने लगी और ये नए, जिसको क्या कहते हैं, वो पावरलूम्स, एक सूरत में तो पावरलूम्स किए, लेकिन ये जो अलग अलग जो प्रोसेसिंग हाउसेस शुरू किए, तो अलग अलग प्रक्रिया से पूरा जो मैनचेस्टर था वो टूटने लगा। और काम करने वाले जो थे, गरीब लोग,
वो और भी गरीब होने लगे। तो इस धनिक शहर के गरीब लोगों के पास उनको तोड़ने के लिए राजकारण भी था, अर्थकारण भी था। पूरी चुनाव की प्रक्रिया ने और उसके चलते स्वार्थी नेताओं ने, और एक तरफ उसकी साथ, जैसे कहते हैं ना हैंड्स इन ग्लव्स, ये जो मूढ़ीपति थे जिन्होंने अपने धंधे बदले, तो वो गरीब क्या करेगा, एक दूसरे के सामने लड़वाने की शुरुआत हुई। बहुत मजा आया, सवर्णों को तमाशा देखते रहे, ताल देखते रहे, माल खाते रहे, हर एक तबक्के के। क्योंकि लड़ने वाले कौन थे, आमने सामने आने वाले थे ठेठ नीचे काम करने वाले मुसलमान और दलित, तो आमने सामने आ गए। 81 में ये शुरुआत हुई अनामत विरोधी आंदोलन से। तो दलितों को एक तरह से, सवर्णों को दलितों के सामने लाया गया, भड़काया गया। दलितों की अस्मिता तो जागी, लेकिन तुरंत ही 85 तक आते आते इन लोगों ने दलितों के सामने मुसलमानों को रख दिया, एक गरीब के सामने दूसरा गरीब। जैसे बहुत पुराने रोमनों के जमाने में एक गुलाम के सामने दूसरा गुलाम रख के ग्लैडिएटर्स को अंदर अंदर लड़वाते थे और उनकी गुलामी को बरकरार रखवाते थे। और जो बड़े बड़े धनिक थे वो ये लड़ाई का तमाशा देखते थे। तो यहाँ पे धनिक और राजनेता दोनों ने ये तमाशा देखने की शुरुआत की। तब हिंदुत्व का एजेंडा धीरे धीरे जाकर के 85 के बाद 89 में राम रथ यात्रा अडवाणी ने निकाली, तो सोमनाथ से अयोध्या, फिर ईंटा यात्रा 92 में, शिला पूजन 91 में, 90 में ईंटा यात्रा, और फिर आखिरकार 92 में मस्जिद का ध्वंस। और पूरा हुआ वहाँ, लेकिन असर यहाँ। तो 92 में जो सामाजिक मानसिकता थोड़ी बहुत भी समाधानकारी थी, उसमें दरारें पड़ने लगी। और आज का जो अहमदाबाद है वो एक दूसरे को नहीं पहचानता। आज का अहमदाबाद है वो आज का लखनऊ भी है, आज का दिल्ली भी है, आज का आगरा भी है, कानपुर भी है, हैदराबाद भी है और केरल भी है। क्योंकि समन्वय टूटा, समाधान टूटा, क्योंकि रोजगार टूटा, गरीब टूटा, श्रमजीवी टूटा। तो श्रम का जो गौरव था वो छीन लिया गया। तो यंत्रीकरण ने जो करना था वो करने के बजाय अपना उल्टा एक चेहरा दिखाया। तो आज का अहमदाबाद कितना टूटा फूटा है। ये जो पुल है वो पुल जोड़ते नहीं है, मुझे लगता है कि तोड़ते हैं। कितने अहमदाबाद है, सबके पिन कोड तो 380 से शुरू होते हैं, लेकिन राजपुर गोमतीपुर से लेकर के भोपाल, साउथ भोपाल तक एक जो पूरा अहमदाबाद है, उसमें कितने अहमदाबाद है, कितना गेटोइजेशन है, कितना आर्थिक विभाजन है, कितना ज्ञातिगत विभाजन है। अभी मैंने पढ़ा राजकोट में, हालांकि राजकोट अब सूरत से भी बढ़ने लगा है, सूरत अहमदाबाद से भी बढ़ गया है, लेकिन हर एक की तासीर अब देखते जाइए। लखनऊ की आज की मूल में हमारे अहमदाबाद और सूरत है। गुजरात मॉडल मोदी जी ने हमारे सामने रखा है। अहमदाबाद को फ्लैगशिप सिटी, अहमदाबाद को शॉक सिटी, तो फ्लैगशिप सिटी है ना अहमदाबाद। यहाँ पर जो नमूना पेश होता है वो सारे देश के लिए, राजनीति के लिए, अर्थनीति के लिए, सांस्कृतिक नीति के लिए। ये पूरी आरएसएस ने अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहलवा के ये जो पूरी चीज़ों को बदलना शुरू किया, उसके पीछे लगता है कि यहाँ पर इसकी शुरुआत, गुजरात मॉडल की शुरुआत अहमदाबाद से हुई है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो इस शहर में इतने विभाजन है कि अब हमारा एक टास्क, हमारे सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा पड़कार है जिसको हम कहते हैं
कुछ लोग भी है हम, लेकिन कम नहीं है। कम है फिर भी कम नहीं होना चाहिए। हमें नए सिरे से कम श्रम की गौरव को, श्रम और श्रमिक से आने वाली इकाई की ताकत को, श्रम के गौरव को, और इन तबकों ने इस शहर को जैसे निर्माण किया था वहाँ तक उसका इतिहास फिर से याद दिलवाने की कोशिशें बहुत ज़्यादा कर दी होगी। हमें वर्ल्ड सिटी दिखाना होगा। ये सारी जो समन्वय की दरगाहें हैं, ये जो किले हैं, ये जो जैनियों के देरासर है, ये सारे दिखाने होंगे, क्योंकि अपने आप में जैन अलग है हिंदुओं से, फिर भी समन्वय और समाधान करके जिंदा है, रहे हैं। इसको भी देखना चाहिए। बुद्धिज़्म को निकाल दिया क्योंकि हालांकि मध्यम मार्ग उनका था, फिर भी उन लोगों ने एक तरह से तार जरा ज़्यादा खींचा, लेकिन नियो बुद्धिज़्म आया है। तो दलितों के बुद्धिज़्म के साथ भी हमें एक नए सिरे से एक समझदारी को बढ़ाना चाहिए। यहाँ जो काकड़िया के पास जो बुद्धिस्ट ये है अपना पैगोडा है, वहाँ पे हमें देखना चाहिए कौन है ये दलित बुद्धिस्ट, क्या कर रहे हैं। दलित बुद्धिस्ट के पास ये नई चेतना है या अपने आप में वो भी एक फिरका हो जाएगा, ये सवाल भी करना चाहिए। दूसरा ये हुआ, इस हिंसाचार के चलते और चुनाव की पूरी प्रकृति के चलते, चुनाव की जो तरह बनी है उसके चलते हम आज और भी बिखरते जाते हैं और भी गेटोइज्ड होते जाते हैं, जिसको हम कहते हैं संकुचित होते जाते रहे। और ये खामियाजा हमें उसको भुगतना पड़ेगा। अगर इसी लाइन पे चले तो केवल अहमदाबाद नहीं, ये पूरे देश और दुनिया का ये हाल होने वाला है। तो क्या करना है, जैसे हमारे सामने टास्क क्या है, इतिहास के कुछ जो अच्छे तबके हैं उसकी याद दिलानी चाहिए। उसको समन्वय से समाधान तक कैसे ले जाया जाएगा, कैसे उस वक्त में ले जाया गया था, उसको याद दिलाना चाहिएगा। हमें इतिहास के सच्चे स्वरूप को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे हम वैकेशन शिविर करते हैं, वैकेशन कैंप करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में, क्या क्रिसमस की छुट्टियों में। तो किशोर बच्चों से माने माध्यमिक स्कूलों से लेकर के हाई स्कूल, कॉलेज, ऐसे यूथ ग्रुप्स, जैसे मीठाखड़ी यूथ ग्रुप होगा, नौरंगपुरा यूथ ग्रुप है, जैसे पहले पोलो के यूथ ग्रुप, युवा मंडल वगैरह हुआ करते थे, आज भी पोलो में है। तो पूरा ये जो सेफ्रेनाइजेशन हो गया है, पूरा ये जो घेटोइजेशन हो गया है, एक ही विचार, एक ही सोच, एक ही संस्कृति का ये जो आक्रमण होने जा रहा है और धीरे धीरे करके आ रहा है, वो बहुत दूर नहीं है। तो उसको रोकने के लिए कम से कम हम, जैसे समंदर में वो कुछ बाहर अंदर ना आ जाए तो पत्थर जैसे रखते हैं ना, ऐसे तिकोन पूरे रखते हैं ना, आप पोरबंदर में जाएंगे, सोमनाथ में जाए तो समुंदर अंदर ना आ जाए, तो हम चेरिया के वृक्ष भी लगाते हैं ताकि बाहर अंदर ना आ जाए। हम ऐसे पत्थर भी रखते हैं ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसी भूमिका हमारे जैसे लोगों को निभानी पड़ेगी। ये सारी कोशिशें युवा बच्चे, यानी जो स्कूल के बच्चे हैं, और ख़ास करके जिन्हें इरेशनल तबके कहते हैं, जो जाहिल, जो पिछड़े हुए, जो गरीब, उन तबकों में हमारी पेट हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे आप जैसे यूथ है यहाँ पे MSD के, जो वहाँ पे जाते हैं, तो हम रोज़गारी, बेरोज़गारी, गरीबी, मुआवजे, वेतन बढ़ोतरी, उसके हक और हित के बारे में, आर्थिक न्याय होना चाहिए। तो ऐसे लड़त तो हम करते हैं, महंगाई के बारे में भी करते हैं, और हम मार्क्सिस्ट तो यही मानते हैं कि असल में तो यही लड़ाई है, ये असली लड़ाई है, जो असली अन्याय है उसको भुलाने के लिए ये सारे धर्म संप्रदाय के हथकंडे हैं। हिंसा भी इनका एक हथियार है। ऐसे धर्म संप्रदाय इन लोगों ने अपने हथियारों के रूप में यूज़ किए हैं।
लेकिन इतना अंदर बैठ गया है कि इसको पहुंचने की हमें जब जब हम गरीबों के बीच जाएंगे, जब जब हम कम पढ़े लिखे और कम आर्थिक रीति आगे वाले तबकों के पास जाएंगे, वहाँ हमें ये चीज़ें डालनी होगी। और इधर वाले तबकों में, स्कूलों में, जहाँ अच्छी स्कूल कॉलेजों में हमें पेठ मिलती है, वहाँ पे भी अब हमें ये जैसे अहमदाबाद का टूर करें, जैसे अहमदाबाद के इतिहास के बारे में कुछ किताबों का मैंने दिया है एक लिस्ट, उसकी छोटी छोटी स्टडी सर्कल जैसा करें। आज तो हमारे जैसे लोग आकर के बोलते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, वो एक एक ऐसे किताबें पढ़ते जाए और हर छुट्टियों में ऐसे स्टडी सर्कल किए जाए। जहाँ प्रौढ़ शिक्षण चलता है, जैसे सेवा वाले करते हैं, ज्योति संघ वाले करते हैं, वहाँ पर भी ये बिन सांप्रदायिकता शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये समाधान और समन्वय की जो चीज़ें हैं वो डाली जाए, जितनी हमारे जैसे लोगों से बनती है ऐसी डाली जाए। अच्छी फिल्में दिखाई जाए, क्योंकि फिल्में काफ़ी असर करती है। तो आप आनंद पटवर्धन की फिल्में दिखाएं या राकेश शर्मा की फिल्में दिखाएं, जो काफ़ी घाव तो देती है, लेकिन घाव का मरहम भी कैसा होगा वो सोचने के ऊपर हमारे जैसे लोग मजबूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा अब ये टास्क भी बनता है कि आर्थिक असमानता के साथ साथ ये जो सांस्कृतिक और मानसिक और सामाजिक असमानता है उसको भी हमें तोड़ना है। तो काफ़ी बातें हो सकती है अहमदाबाद के बारे में। इतिहास के पंडित जो है वो आएंगे और ऐसी ऐतिहासिक यानी ठोस चीज़ें भी बताएंगे, लेकिन मेरा जो मकसद है, हमारे जैसे लोगों का जो मकसद है कि क्रिटिकल थिंकिंग इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में भी होना चाहिए और नए सिरे से नए टास्क फोर्स हमें हाथ में लेने चाहिए और एक नया कैडर बताना चाहिए इन लोगों के जो ये हिंदुत्व का, यानी केवल हिंदुत्व नहीं है, इसके सामने इसका सामना करने के लिए इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी आ रहा है। तो सारे एक करेगा तो दूसरा सामने अपने हथियार तैयार करेगा, ढाल करेगा, तलवार करेगा। जैन भी आ जाएंगे, दलित भी आ जाएंगे, आदिवासी भी आ जाएंगे। तो ये जो हिंसाचार होगा उसके सामने हम एक सहअस्तित्व और समाधान और समन्वय की नई टास्क फोर्स लेकर के उनके सामने जाएंगे। ये बात हमारे जैसे लोगों के बीच करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास तो इतिहास था, इतिहास रहेगा, लेकिन ये वाली जो राजनीति है, तूने नहीं तो तेरे बाप ने मेरे झरे से पानी पिया, आ मैं तुझे खा दूँ, ये वाली चीज़ हम कहीं पे रोक सकें तो रोकने का एक, हालांकि हमारी विरासत है रामायण, उसको देखने का भी अलग अलग नज़रिया हो सकता है। आखिर में जैसे सेतु बनाने के लिए एक गिलहरी, जिसको गुजराती में खिसकोली कहते हैं, उसने एक एक पत्थर भी दिया था। तो हम चाहे छोटी छोटी गिलहरियाँ हैं, हम वानर भी है, लड़ने के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो खोई हुई सोने की लंका है, हमारी जो समन्वय और समाधान की जो और आर्थिक समानता की एक यूटोपियन जो संस्कृति है, उसको बरकरार रखने और वापस पाने के लिए कोशिश करने की खिसकोली कृत्य या तो गिलहरी का काम भी हमारे जैसे लोगों को अब आने वाले समय में करना पड़ेगा और नई पीढ़ियां भी तैयार करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज का दूसरा दिन देने के लिए। बहुत नमस्कार। ये तो दूसरा अंक, दूसरा अध्याय भी खत्म नहीं हुआ ऐसा लगता है, तो तीसरा अध्याय तो आने वाले दिनों में करेंगे, तब तक तो काफ़ी मसाला भी आ गया होगा। ये स्वरूप बेन, आपका तो जो कोई नरेशन करने का जो तरीका जो है, स्टोरी टेलिंग या हिस्ट्री टेलिंग, एक कला है
ये सबको अंदर में कला नहीं होती है और ये लोग के छू जाने वाली है और दिमाग खुलने वाली भी है। अनुभव करना, एक्ट करना, ये सब जो बात का अंदर में जो कला छुपी नहीं, जो दिख रही है, ये आज 2 हफ्ते का जो चर्चा हुआ तो ये काफ़ी असरकारक रहा। और आप तो बहुत कुछ कहे भी और कुछ कहे भी नहीं, तो जो नहीं कहे हुए हैं तो और कभी हम लोग बाद में आपको बिल्कुल याद करेंगे। आप तो हमारे साथी हैं। तो बस ये बहुत ही सुंदर चर्चा हुई। काफ़ी जो इतना बड़ा शहरनामा और सफ़रनामा दोनों ही उनका है, शहरनामा भी है, सफ़रनामा भी है। तो शहरनामा में सफ़रनामा भी है। तो ये जो बात है तो इसमें एक साथ में इतिहास, सामाजिक इतिहास, कल्चरल सिंकेटिज्म, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, भाईचारा, विवाद, स्ट्रगल, वर्किंग क्लास यूनिटी, वर्किंग क्लास डिविजन्स, डिवाइड एंड रूल, ये सब इतने सारा इसका पासा है। सो मैनी एकदम। अहमदाबाद तो आपने लास्ट टाइम से बताया था, पूरा वो जो अश्वहिल, ये जो कर्णावती नाम, कहाँ से कहाँ हम सफ़र करके भी आए। और 1946 बसंत रजब का शहादत, जो हम 3 तारीख को समन्वयन का ये है, 3 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस होगा, सिटीजन कॉन्फ्रेंस सरदार भवन में, ये लाल दरवाजा सरदार भवन में 10:30 बजे है। बसंत रजब तो 46 में शहादत था उनका। तो 46 के बाद में भी आपने जो बताया कि 69 बहुत बड़ा राइट उस टाइम पे बलराज मोदक का टाइम पे हुआ। और बाद में 81, फिर बाद अनामत 85, फिर बाद दलितों के अंदर में किस तरह से सफरनाइजेशन, बहुत सारे आपने इतना 2000s में जो गेटोआइजेशंस, 2000 के बाद में जो परिवर्तन जो हुआ उसके भी तभी इतना अपने वाइड रेंज में चर्चा की। तो ये तो आपने बहुत छोटे ढंग से बोले, लेकिन इसका और भी डिस्कशन, बातें होनी चाहिए और कभी कभी इसका वर्कशॉप भी होना चाहिए और क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए। बहुत अच्छा चर्चा हुआ, आपको बहुत धन्यवाद। और एक खाली अनाउंस करना है कि आने वाले गुरुवार को जो एसके के जो प्रिंसिपल जो थे सुभाष ब्रह्मभट्ट, वो भी वो अहमदाबाद के सिंकेटिक ट्रेडिशन के ऊपर में बात करेंगे। अच्छा, वो तो उनका सब्जेक्ट है उनका। चीनी भाई नायक जो थे उनके अंडर में उन्होंने डॉक्टरेट किया था। तो बाद में आने वाले रविवार में वो गुरुवार को वली गुजराती के बारे में हम कोशिश किए कि मनीषी भाई बोले, तो मनीषी भाई जानते हैं, मनीषी जानी। तो वली गुजराती को जो 2002 में इसको उड़ा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो मैंने बाजार की ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो है, फिर हमको 3 तारीख को सरदार पटेल स्मारक जो भवन जो है वहाँ कॉन्फ्रेंस होगा, 10:30 से 1:30 बजे तक होगा। हाँ, वो बसंत रजब का सम्मेलन होगा। तो ये बसंत रजब सम्मेलन हम तो बहुत पहले भी किए थे, 8 जुलाई 2000 में भी किए थे। और हेमंत चैन, उसके बाद हमने बहुत बड़े हेमंत चैन का प्रोग्राम भी किया था, लाल दरवाजा का, नेहरू ब्रिज का उस कोने से उसका अंदर पूरा भर गया था, बहुत बड़ा था। अभी भी मन में भी और अभी हमारा मन में ऐसा इच्छा है कि जो वातावरण जो बन रहा है, पता नहीं ये अभी होगा कि नहीं होगा, वातावरण पुलिस परमिशन दे या नहीं दे मालूम नहीं है। मन में इच्छा है कि एक हेमंत चैन का प्रोग्राम या ऐसा कोई भाईचारा का प्रोग्राम का कुछ हम बात को रख के कुछ प्रोग्राम अभी अहमदाबाद में ले, सारे सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, यूथ, टीचर्स सबको इकट्ठा करें, हम बात करें। एक प्रचेष्टा चल रहा है, कहाँ तक हो पाएगा कहना मुश्किल है। बाद में स्टूडेंट्स के अंदर में जो कला, संस्कृति लिखते हैं, कविता लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, उनके अंदर में भी कुछ काम करने की कोशिश हो रही है, ताकि वो लोग स्कूल कॉलेज खुल गए हैं तो उनके अंदर में, ताकि ये एक कौमी वातावरण का जो कैंसरिक जो प्रभाव जो है, वायरस उनके अंदर में ना जाए, उसके अंदर में रोकने के लिए एक कला संस्कृति का हम लेके कोशिश करेंगे। तो ये अभी एक कोशिश जारी है। और फिर बाद में आने वाले गुरुवार में हम फिर से मिलेंगे। और सबको थोड़ा ये भी क्या है कि अभी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रहा है,
अभी सबको मालूम नहीं है, पता भी नहीं है सबको, और कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोविड ने लोग आदत बिगाड़ा। कोविड ने क्या है कि ईमेल काफ़ी लोग देखते नहीं है, हम ईमेल में भेजते हैं, और व्हाट्सएप में ज़्यादा, माने हम लोग है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, फेसबुक में ज़्यादा भेजा जाता है, और व्हाट्सएप में भी मैसेज भी भेजते हैं। तो फिर और इसको भी और असरकारक हो, सब जाने, उसको कोशिश कीजिए। और ये तो फेसबुक में देख भी सकते हैं, और अभी इसको बाद में यूट्यूब में भी डाला जाएगा, तो यूट्यूब में भी आप इसको, लास्ट टाइम का यूट्यूब को डालते तो 2 दिन लग गया, लेकिन इस बार तो यूट्यूब इस बार आ जाएगा। तो जिनको यूट्यूब में देखना, यूट्यूब में तो आप आराम से MSD क्लिक करेंगे, MSD करने से आ जाएगा, तो आप देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आज यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, तो बस इतना ही। 2002 ઉપર તો આખા સત્રો થાય. હા, એ તો- ત્યાં શું અમદાવાદનું છે આ બધા રાહત